ڈیلی میل کے معاملے پر اللہ نے سرخرو کیا، برطانوی اخبار نے غیر مشروط معافی مانگی، برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کلین چٹ دی، ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، عمران نیازی نے جگ ہنسائی کے سوا کچھ نہیں کیا، 50 ارب روپے کا فراڈ کیا، تحفے میں ملنے والی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی تک بیچ ڈالی، ملک کی معیشت تباہ کی، دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے، ملکی مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کو قوم کو حساب دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی نیوز کانفرنس۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جلد واپس آئیں گے، پاکستان کے لیے ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، ملک کی خاطر تمام اختلافات کو بھلایا جا سکتا ہے، ہمارے دور میں ملنے والی امداد کو شفاف طریقے سے خرچ کیا گیا، عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے الزامات لگانے کے سوا کچھ نہیں کیا، صرف گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ اتحادی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، اشیاء خورنوش کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں، 100 ارب روپے کا کسان پیکج دیا، سیلاب متاثرین کی بحالی بہت بڑا چیلنج ہے، 70 ارب روپے نقد امداد متاثرین میں تقسیم کی گئی، عوام اور سیلاب متاثرین کی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا، عمران نیازی نے عالمی مالیاتی اداروں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، اتحادی حکومت نے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا کی ملاقات، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم میں آگاہ کیا، سیکرٹری جنرل کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے OIC کی مکمل حمایت کا اعادہ، وزیر اعظم کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے اصولی موقف کی تعریف، سیکرٹری جنرل کے دورہ لوسی سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوں گے، حق خود ارادیت کے منصفانہ جدوجہد کے لیے مضبوط پیغام جائے گا۔ چمن سرحد پر افغان فوجیوں نے باڑ کی مرمت روکنے کے لیے فائرنگ کی، افغان حکام نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا، ہم افغانستان کے خیر خواہ ہیں، چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اختلافات ختم اور مستحکم حکومت ہو، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ نالائق، نااہل، توشہخانہ چور، عادت سے مجبور، اداروں کو اپنی گھٹیا سیاست میں گھسیٹ رہا ہے، عمران خان ملک میں فساد، انتشار اور افراتفری چاہتا ہے تاکہ معاشی استحکام نہ آ سکے، حالات ملک کے نہیں عمران نیازی کے خراب ہیں کیونکہ بیساکھیاں ٹوٹ چکی ہیں، 4 سال کی معاشی تباہی، بے روزگاری، مہنگائی اور چوری کا جواب دینا ہوگا، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ وفاقی وزیر شیر الرحمان کی عمران خان کی جانب سے آرمی چیف سے سیاسی معاملات میں مداخلت کی اپیل کی مذمت، جمہوری سیاستدان اداروں کو مداخلت کی دعوت نہیں دیتا، عمران خان نئے آرمی چیف کو اپنا سیاسی بیانیے سے دور رکھیں، پی ٹی آئی بند گلی میں پھنس چکی ہے، اس کے ارکان اتحادی اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ، پی ٹی آئی کے IMF سے کیے گئے معاہدوں کا شاخسانہ، قوم کے سامنے پول کھل جانے پر عمران نیازی مایوسی کا شکار ہے، اپنی سیاست کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کو ہمیں صاف کرنا پڑ رہا ہے، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ نادرا کی صدر ڈاکٹر عارف علوی کو خصوصی افراد کے رجسٹریشن اور دیگر سہولتوں پر بریفنگ، خصوصی افراد کو مفت خدمات کی فراہمی اور الگ کاؤنٹر قائم کرنے پر نادرا کی تعریف، معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمتیں پیدا کی جائیں تاکہ ان کی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکے، صدر مملکت۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سرکاری وسائل کے غیر قانونی استعمال کو قانونی تحفظ دینے کا بل منظور، 2008 سے ہیلی کاپٹر کا استعمال قانونی قرار، اپوزیشن کا شدید احتجاج، بل عمران خان اور پی ٹی آئی کو نیب کارروائی سے تحفظ فراہم کرنے کی کوشش ہے، پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔
अंकारा में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कश्मीर कांग्रेस का एलामिया। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय जहरियत और आबादी का तनासुब तब्दील करने की शदीद मजम्मत। मकबूजा इलाके में बैनुल-अक़वामी कवानीन, इक़्तार, मुआहिदों और कन्वेंशंस की खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। आलमी बिरादरी को कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मुतासर। शदीद सर्दी से झीलें और नहरें जम गईं। बर्मिंघम में झील में गिरने से 3 नौजवान हलाक। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। गवादर, पिस्नी, खुजदार और कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र हाई रिस्क इलाकों में एमरजेंसी नाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाराज हो? बाहर खाना खाने चले? अच्छा, ताकि बाद में तुम ये कह सको कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ। अरे बीओपी का मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड है ना, जो देता है पाकिस्तान के लीडिंग रेस्टोरेंट्स पर अप टू 50% डिस्काउंट। मजीद मालूमात के लिए बीओपी हेल्पलाइन 111-267-200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान किसी सूरत दिवालिया नहीं होगा। इमरान नियाज़ी और उसके हवारियों ने इल्ज़ामात लगाने और मुल्क की जगहसाई के सिवा कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने हमें क्लीन चिट दी। डेली मेल के मामले पर अल्लाह ताला ने सुर्खरू किया है। इमरान खान मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाने का कौम को हिसाब दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नबीर अज़हर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पानामा से अकामत तक घड़ी गई कहानी मुकम्मल झूठी साबित हुई और अल्लाह ने शरीफ फैमिली, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को सुरखरू किया। नेशनल क्राइम्स एजेंसी जो बरतानिया की, उसको इमरान नियाज़ी और उनके हवारियों ने हज़ारों कागजात दिए और 2 साल उसकी तहकीकात होती रहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी और मुझ खताकार की इज़्ज़त रखी। इमरान नियाज़ी और उसके हवारियों ने पाकिस्तान की जो बदनामी उसमें पहना थी, उनको इल्म था उसका, लेकिन वो एक पत्थर दिल की तरह वो इस सोच के हामिल थे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचता है, कोई बात नहीं, ये शरीफ ख़ानदान को पूरी तरह दुनिया में रुस्वा करो। बिलाखिर अल्लाह ताला के फजल करम से 3 साल बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। माफ़ी मुझसे नहीं मांगी, ये आपसे माफ़ी मांगी, आप सबसे। बाखुदा मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ाती सियासत के लिए मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए। इमरान नियाज़ी ने दुनिया को झूठी कहानियां सुनाकर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया और मुल्क की मुईशत को तबाह किया गया। डेफिड जो बरतानिया का सरकारी इदारा है, बरतानवी हुकूमत ने वजाहत दी उसी दिन कि ये बात गलत है, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। इमरान नियाज़ी के पूरे प्रेशर के ऊपर और भी इसमें लोग शामिल थे कि डिफिट की इस वजाहत को 6 घंटे उसको मौखर करवाया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान की जगहसाई हुई, रसवाई हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी वली अहद ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बनवाई थी। ये घड़ी पाकिस्तानी आवाम की इज्जत के लिए थी। घटिया हरकत की, घटिया तरीन कि खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान नियाज़ी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया। किस तरीके से एक ऐसे शख्स ने हमारी जो मईशत है उसको तबाह किया,
ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی، اور جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو زیرو پر لے آئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی۔ عمران نیازی نے مہنگائی کے سوا عوام کو کچھ نہیں دیا۔ پاکستان کی معاشی بقا، سلامتی، خوشحالی کے لیے ہم ایک کیا 100 قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، قربان کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ ہم فوراً چلے جائیں جنرل الیکشن میں، اس لیے کہ معیشت کو پوری کوشش کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ٹھیک کریں۔ دوسری بات، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والے کروڑوں میں بستے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ پاکستان جلد تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی کوشش کے بعد حکومت IMF کے ساتھ دوبارہ پروگرام بحال کرنے میں کامیاب ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری گزشتہ حکومت میں اشیاء خورونوش سستے داموں دستیاب تھیں۔ عمران نیازی نے 4 سالہ دور میں عوامی فلاح پر توجہ کی بجائے فقط انتقامی کارروائیوں پر زور دیا۔ وہاں پر نواز شریف صاحب قید تھے، مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی، وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں، گرفتار کر کے لے گئی۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی، کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اسی طرح زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا، اپنی بہن آپ نے ان کو NRO دلوا دیا۔ میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا۔ مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے PTI رہنما کی طرف سے ملک کے ڈیفالٹ کی خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان نے نہ کبھی ڈیفالٹ کیا ہے نہ کرے گا۔ کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں۔ ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز، اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ ڈیفالٹ نہیں کرے، کیونکہ اگر آپ اوبسیسڈ ہو گئے کہ اپنے ملک کا آپ نے بیڑا گرک کرنا ہے، دنیا میں بدنام کرنا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے، اس کی ریٹنگز خراب کرنی ہے، دنیا میں ورلڈ میں نہیں بزنس کرنے دینا، تو ایسی اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمیز۔ سوالوں کے جواب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ PTI حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا، اور عمران نیازی اور اس کی ٹیم نے پاکستانیوں کو بطور کرپٹ قوم ثابت کرنے کی کوشش کی، اور عالمی مالیاتی اداروں سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے اور معیشت کو تباہ کیا۔ محمد حمید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے اصولی موقف اور مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے لیے ایک مضبوط پیغام جائے گا۔ اسلام آباد میں OIC سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع کے حل کے لیے OIC کے اصولی موقف اور مستقل حمایت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ OIC سیکرٹری جنرل کے دورے سے کشمیری عوام کو منصفانہ جدوجہد میں ایک مضبوط پیغام جائے گا۔ وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کے عوام اور حکومت کی غیر متزلزل حمایت کی بھی تجدید کی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے کوششوں میں تیزی کی ضرورت ہے۔ OIC سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے OIC کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ قازقستان پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے چیئرمین یرلان کوشنوف کی قیادت میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں بالخصوص قازقستان کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آستانہ میں سیکا اور سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاسوں کے موقع پر بھی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نتیجہ خیز گفتگو ہوئی۔ محمد شہباز شریف نے توانائی، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قازق صدر کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان جلد ہی وسط ایشیائی ریاستوں کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں علاقائی تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے سڑک اور ریل رابطوں پر بات چیت ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ چمن سرحد پر افغان فوجیوں نے باڑ کی مرمت روکنے کے لیے فائرنگ کی۔ افغان حکام نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے خیر خواہ ہیں، چاہتے ہیں وہاں اختلافات ختم ہوں اور مستحکم حکومت ہو۔ چمن میں جناب علی پرووکیشن جو ہے وہ
افغانستان کی طرف سے آئی. انہوں نے ایک ڈیمیج ہوا تھا حصہ باڑھ کا, اس کو ہمارے لوگ ریپیئر کر رہے تھے اور اس کا ریپیئر کا کام جو ہے روکنے کی کوشش کی. انہوں نے ہیوی جو ہے وہ اسلحہ استعمال کیا. اس کے جواب میں ہم نے ان کی پوسٹ پہ اٹیک کیا اور ان کی کیجولٹیز جو ہیں وہ فوجیوں کی ہوئی ہیں ان کی. اس کے بعد جو ہے دوبارہ بارڈر سیکورٹی کی کمیٹی جو ہے اس کی ملاقات ہوئی اور اس میں یہ بات جو ہے طے پائی کہ جو غلطی جو ہے افغانستان کی تھی. خاتمہ بالخیر اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا قصور ہے, ہم معذرت کرتے ہیں اور آئندہ یہ واقعہ جو ہے نہیں ہوں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے, یہ ان کا کہنا تھا, اور سیاست سمیت ہر شعبے میں انہوں نے کہا کہ خواتین نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے. صنف کی بنیاد پر کسی کے بارے میں تضحیک آمیز ریمارکس اور رویے قابل قبول نہیں ہیں. ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طرح خواتین نے اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر اس کے بعد کلثوم نواز شریف صاحبہ بھی ابھی ریسنٹ جو سیاسی تاریخ ہے اس کا حصہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک عامر کا مقابلہ کیا. میری خود خالہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہی, بیگم نجمہ حمید صاحبہ, انہوں نے ملک کی ترقی, ملک کی سیاسی جدوجہد اور ملک کی جمہوریت کے لیے جو قربانی دی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. اور مجھے فخر ہے کہ یہ جو ایوان ہے اس کو بھی ایک خاتون نے اسی چیئر پہ بیٹھ کر چلایا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی فخر ہے اور پاکستان کی خواتین کے لیے بھی باعث فخر بات ہے. وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کے دورہ افغانستان سے ملک کا مثبت امیج پیدا ہوا ہے. پاکستانی خاتون نے ایسے ملک کا دورہ کیا جہاں خواتین کے لیے بہت مسائل ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ بیساکھیاں ٹوٹنے کے بعد عمران خان کے حالات بہت خراب ہیں. پاگل شخص ملک میں فساد, انتشار اور افراتفری چاہتا ہے. ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امپائر نیوٹرل ہوتے ہیں. ادارے کی جانب سے اس کی گھٹیا سیاست کا حصہ نہ بننے پر یہ شخص حیرت میں مبتلا ہے. نالائق, نااہل اور توشخانہ چور اداروں کو اپنی گھٹیا سیاست میں گھسیٹنا چاہتا ہے. روئیں, چیخیں یا پٹیں, اب ادارے عمران نیازی کی سازشی منصوبہ بندی کا حصہ نہیں بنے گے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور عدلیہ فوراً ایجنٹ اور توشخانہ کے چور سے حساب لیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے کاروباری برادری اور کسان جانتے ہیں کہ ملک عمران نیازی کی معاشی تباہی کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے. عمران خان ملک کو دیوالیہ ہونے کی طرف لے جا رہے تھے. اتحادی حکومت نے اس عمل کو روکا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان ملک کا لوٹا ہوا پیسہ, رشوت میں لی زمین, چوری شدہ ہیرے, توشخانہ کی لوٹ مار اور فورن فنڈنگ کا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ اس شخص کو 4 سال کی معاشی تباہی, بے روزگاری, مہنگائی اور چوری کا بھی جواب دینا ہوگا. موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو سیاسی معاملات میں مداخلت کی اپیل کی. مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی جمہوری سیاستدان اداروں کو سیاست میں مداخلت کی دعوت نہیں دیتا. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان پہلے بھی اداروں کو اپنے حق میں مداخلت کا کہتے رہے. ان کو بیساکھیوں کی عادت پڑ چکی ہے. عمران خان کو اب اداروں کی مدد کے بغیر سیاست سیکھنی ہوگی. نئے آرمی چیف کو اپنے سیاسی بیانیے سے دور رکھیں. شیر رحمان نے کہا کہ یہ شخص بند گلی میں پھنس چکا ہے. اس کے ارکان قومی اسمبلی استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, نہ ہی ان کے اتحادی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے حق میں ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 4 سال میں گورننس پر توجہ دینے کے بجائے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. یہ لوگ توجہ دیتے تو آج معیشت کے یہ حالات نہ ہوتے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اپنی سیاست کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں راہیل انصار. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مہنگائی میں اضافہ عمران خان کے IMF سے کیے ہوئے معاہدوں کا شاخسانہ ہے. قوم کے سامنے ان کا پول کھل جانے پر وہ مایوسی کا شکار ہیں. عمران کی پچھائی ہوئی بارودی سرنگوں کو آج ہمیں صاف کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ملک جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس کی پشت کے اوپر 2 فیکٹر ہیں. ایک جو ڈیویلیویشن گزشتہ 4 سالوں میں کی گئی اس نے مہنگائی کے جن کو بوتل سے باہر نکالا, اور دوسرے جو شرائط نامہ عمران خان صاحب IMF کے ساتھ طے کر کے گئے, تو ہمیں ان حالات کے اندر بہت ہی پھونک کے قدم رکھنے ہیں. ہم داخلی
محاذ پر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. خان صاحب اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. ابھی کشمیر کے جو انتخابی نتائج ہیں ان سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اس سے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نئی نسل پر زور دیا کہ وہ آئی ٹی کے میدان میں رہتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، جس کے لیے حکومت انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. ٹیکنالوجی اور انوویشن کا جو ایک ملاپ ہے، یہی اس دور کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی اپرچونٹی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کیا. آخر میں کامسیٹ کے ریکٹر نے شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کو ملنے والی دھمکی کی شدید مذمت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت پر زور دیا ہے کہ معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے. وزیر داخلہ نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں. انہوں نے صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں جھوٹ کی سیاست کرنے کے بجائے سیاسی قائدین کو ملنے والی دھمکیوں اور امن و امان کی صورتحال پر توجہ دیں. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وفاقی حکومت ایمل ولی خان کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ نیب قانون میں کافی سکم ہیں. ترامیم سے قبل قانون کافی تنقید کا شکار رہا. ماضی میں نیب قانون کے تحت محض الزام پر 90 دن کے لیے گرفتار کر لیا جاتا تھا. نیب قانون میں ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب ترامیم ملکی قانون میں پیش رفت کی حیثیت رکھتی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ججز بھی نیب قانون کے دائرہ کار سے باہر نہیں. افواج پاکستان کو اس قانون کے دائرہ کار سے یوں باہر رکھنا تحریک انصاف کے نزدیک آئینی ہے یا غیر آئینی. انہوں نے عمران خان کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دلائل کے مطابق رکن پارلیمنٹ عوامی اعتماد کا امین ہوتا ہے جسے لاکھوں لوگ منتخب کر کے ایوان میں بھیجتے ہیں. ایوان چھوڑ کر سڑکوں پر فیصلے کرنے کی کوشش سے جمہوری نظام کیسے چلے گا؟ کیس کی سماعت کل پھر ہوگی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشاخانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. معاملے کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی. عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عمران خان یہ بتانے میں ناکام رہے کہ خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی کس قیمت پر فروخت ہوئی. 2019-20 میں عمران خان نے ٹیکس ریٹرنز میں 80 لاکھ روپے توشہ خانہ قیمت میں ظاہر کیے. انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی تحفہ توشہ خانہ سے ملکیت بنایا جائے اور اس کو گوشوارے میں ظاہر نہ کیا جائے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کا توشہ خانہ سے تحائف خرید کر بیچنے کا طریقہ کار منی لانڈرنگ والا ہے. 2021 میں کچھ رقم کو ظاہر کیا گیا جسے گزشتہ 2 سال میں ظاہر نہیں کیا تھا. اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کو نادرا کی جانب سے خصوصی افراد کی رجسٹریشن اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کے بارے میں بریفنگ دی گئی. صدر مملکت نے شناختی کارڈ کے اجراء سمیت دیگر سہولتوں کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد کے مساوی حقوق ہیں اور ان کی قومی دھارے میں شمولیت مضبوط اور صحت مند معاشرے کے لیے اہم ہے. انہوں نے خصوصی افراد کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے کے لیے قومی اور صوبائی سطح پر آگاہی مہم کی ضرورت پر زور دیا. صدر مملکت نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں خصوصی طلباء کے ساتھ یکساں سلوک ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ تربیتی ادارے خصوصی افراد کی شمولیت کے لیے اقدامات کریں اور اس سلسلے میں خصوصی نصاب اور تکنیک وضع کی جائے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ خصوصی افراد کی معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمتیں پیدا کی جائیں تاکہ ان کی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اسپیشل پرسنز کی معذوری کا جائزہ لینے کے لیے ملک بھر میں میڈیکل بورڈ کے قواعد و ضوابط اور طریقہ کار یکساں ہونا چاہیے. صدر مملکت نے خصوصی افراد کو مفت خدمات کی فراہمی اور خصوصی کاؤنٹرز قائم کرنے پر نادرا کی تعریف کی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آکسفورڈ یونیورسٹی پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کے اخلاقی استعمال کے علاوہ پاکستانی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے ساتھ علم اور مہارت میں اشتراک کرے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پاکستان پروگرام کے وفد سے گفتگو میں صدر مملکت نے کہا کہ معروف عالمی جامعات کے ساتھ اشتراک اور تعاون سے پاکستانی طلباء کی صلاحیتوں کو عالمی معیار کے مطابق بہتر بنانے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ جیسے عالمی اداروں میں پاکستانی طلباء کی نمائندگی انہیں اپنے خیالات بہتر بنانے اور تعلیمی اہداف کے حصول میں مدد دے گی. صدر مملکت نے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور پاکستانی اداروں کے درمیان مضبوط، پائیدار اور بامعنی روابط کو فروغ دینا ہوگا. صدر مملکت نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پاکستان سے متعلق مختلف سرگرمیوں پر آکسفورڈ پاکستان پروگرام کو سراہا.
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि तरक्की के लिए पॉलिसीज खुसूसन माशी पॉलिसी में तसलसल नागुज़ीर है। ईवान सदर में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत का काम तिजारत के लिए साजगार माहौल की फराहमी है और मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जमहूरियत के एतबार से हुकूमतें तो बदलें, मगर कंटिन्यूएशन अगर नहीं होगी तो नतीजा ये होगा कि किसी को कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा। हर एक चलाएगा अपनी मर्जी से अपनी गाड़ी, कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं रुकेगी, कहीं टकराएगी। तो द स्टेट इज़ नॉट प्लेइंग। स्टेट का तो काम ही यही है कि सिग्नलिंग सही हो। स्टेट का काम तिजारत खुद नहीं है। स्टेट का काम वो सड़कें बिछाना है जिस पर तिजारत होगी। स्टेट का काम ये है कि ये सड़क वहाँ तक जाती है, इस सड़क पर कोई सिग्नल नहीं है, इस सड़क पर इतना टैक्सेशन है। स्टेट इतना ही काम करती है। और अगर स्टेट कारोबार के अंदर फंस जाए तो इट बिकम्स अ अनहेल्दी कंपटीशन बन जाता है कि स्टेट खुद जब कारोबार करती है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान ने पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका इक़दामात के अज़्म का इजहार किया है। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। काज़ाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी के चेयरमैन एरलान कोशनोव की सरबराही में वफ़द ने पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी अमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि काज़ाकिस्तान वस्ती एशिया के अहम ममालिक का हिस्सा है। पाकिस्तान में दिफा, तवानाई, सियाहत और सनती शोबे में सरमायाकारी के वाफिर मौके मौजूद हैं। काज़ाकिस्तान इन मौके से इस्तेफादा कर सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान वीज़ा की शराइत को आसान बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। काज़ाकिस्तान के ऐवान ज़ेरीन के चेयरमैन एरलान कोशनोव ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात 30 साल के मुश्तरका ताउन पर मुहित हैं। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप दोनों ममालिक को मज़ीद करीब लाने में किरदार अदा कर रहा है। काज़ाकिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाह के जरिए बैरूनी दुनिया के साथ तिजारत में गहरी दिलचस्पी रखता है। पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान पार्लिमानी फ्रेंडशिप फोरम की भी मुलाकात हुई। मेज़बान मिनिस्टर शाजिया मरी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम काज़ाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखती है। पार्लिमानी वफूद के तबादले से दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वुसअत आएगी। इससे पहले पार्लिमानी वफ्द के सरबराह एरलान कोशनोव ने पार्लियामेंट हाउस के सब्जाजार में पौधा लगाया और दोनों बरादर ममालिक की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा के माबैन इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट ने बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2022 मंजूर कर लिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में साबिक रुकन नजमा हमीद की मग़फ़रत और मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस की शहीद होने वाले एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। ईवान ने मरहुमा नजमा हमीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से पेश की गई करारदाद की मुतफ़क्का मंजूरी भी दी। इजलास में सिंध से नौमुंतखब रुकन सैयद वक़ार मेहदी ने रुकनियत का हल्फ उठाया। चेयरमैन सादिक संजरानी ने उनसे हल्फ लिया। इजलास के दौरान पीटीआई सेनेटर्स ने सेनेटर आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न होने पर एहतजाज किया। चेयरमैन सेनेट ने कार्रवाई जुमेरात की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दी। मुल्क में मोटरवेज का वसी जाल बिछाने में मुस्लिम लीग नून ने अहम मंसूबों का आगाज किया। हैदराबाद सखर मोटरवे भी एक ऐसा ही मंसूबा है जिससे फासलों के सिमट जाने से जहां आवाम को फायदा होगा वहीं मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी। इस मंसूबे का संगे बुनियाद कल रखा जाएगा। तफसील बता रहे हैं शिराज अली डाहरी। सड़कों का जाल, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकबिल में आबादी के तनासब से ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत को देखते हुए सखर से हैदराबाद M6 मोटरवे की तामीर मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम मंसूबा है। हैदराबाद से सखर 306 किलोमीटर पर मुहित M6 मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की जा रही है, जिसकी लागत तकरीबन 307 अरब रुपए है।
इस अहम मंसूबे को 2.5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, जिससे नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव में कमी, कम फासले की वजह से 5 घंटे का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में तय होगा, जिससे ईंधन और वक्त दोनों की बचत होगी। ये मोटरवे जो है हमारे ख़ास तौर पे सिंध के अवाम की और सिंध के लिए बहुत ज़्यादा देरीना ख्वाहिश भी थी, ज़रूरत भी थी। मौजूदा हुकूमत और हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों से उनका सिंध के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजर जाएगा और उसमें हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे, टाइम की भी बचत है। जो से मुश्किलातें पेश आती हैं लिंक रोड से, वो हमारी हल हो जाएंगी। 6 लेन पर मुश्तमिल इस तवील मोटरवे पर 20 ब्रिजेस और 6 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। M6 मोटरवे की तकमील से कराची से पेशावर तक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा मोटरवे से मुंसलिक हो जाएगा। M6 की तामीर से तकरीबन 30,000 अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे, जबकि सक्खर, खैरपुर, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज, मटियारी, जामशोरो और हैदराबाद अजला में 15 इंटरचेंजेस बनाए जाएंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तामीर से न सिर्फ रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे, बल्कि कम वक्त में आवाम को सफरी सहूलियात भी मैसर होंगी। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में तरक्की के हवाले से जोग्राफियाई तफरीक ख़त्म करना हिकमत अमली का अहम जुज़ है। 5 साल में पसमानदा तरीन अजला से पसमानदगी को ख़त्म करने का मंसूबा है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कही। इस इजलास में 20 पसमानदा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली भी शरीक हुए। इन 20 में से 11 अजला का ताल्लुक़ बलोचिस्तान से है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पहले मरहले में जामे मनसूबाबंदी के जरिए तालीम, सेहत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाएगी। नाज़रीन, मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। सुबह सिंध के मुख्तलिफ शहरों कराची, सक्खर और कश्मीर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैलियों में मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए। बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। रैली में सैकड़ों अफराद ने बैनर्स उठाए और सड़कों पर निकल आए, जिन पर पाक फौज और शोहदा के हक में नारे दर्ज थे। शुरका की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। रैली के शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि हम बहैसियत कौम मिलकर यकजहती के साथ तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं और पाकिस्तान को मसाइल की दलदल से निकाल सकते हैं। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में मुनक्किदा 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कश्मीर कांग्रेस के इख्तिताम पर जारी होने वाले एलामिये में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत, गैर कानूनी तसल्लुत और जुल्म तशद्दुद को मुस्तरद किया गया है और कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरादियत देने से भारत के मुसलसल इनकार की मजम्मत की गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कांग्रेस के इनेकाद लीगल फोरम फॉर कश्मीर ने सेंटर फॉर इकनॉमिक एंड सोशल रिसर्च के ताउन से किया था। एलामिया में कहा गया है कि भारत मकबूजा इलाके में बैनुल अक़वामी कानून, अक़दार, मुआहिदों और कन्वेंशंस की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। जम्मू कश्मीर को अपनी नौबारियाती बनाकर मुल्क में जम करने की कोशिश कर रहा है। एलामी में कहा गया है कि भारत मकबूजा इलाके में जारहाना अंदाज में अपने फिस्ताई एजेंडे पर अमल पैरा है और बगैर किसी जवाबदही के मकबूजा इलाके में जंगी जराइम जारी रखे हुए है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र आलमी बिरादरी को मोदी की जारी जलगार से कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। नई दिल्ली की एक अदालत ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान की तरफ से उनके खिलाफ 2017 के झूठे मुकदमे में दायर की गई जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। नईम खान 14 अगस्त 2017 से मुसलसल अदालती हिरासत में हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि मोदी हुकूमत का कश्मीरी खानदानों के लिए मुनफरद ID बनाने का मंसूबा कश्मीर के बाशिंदों की निगरानी का एक और हथकंडा है। महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जाहिर किया कि भारत कश्मीरियों को शक व शुबे की निगाह से देखता है। भारत में नामालूम अफराद ने शिमाली तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया है। भारतीय जिला में एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड फायर किया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद के हमले में सरहाली पुलिस स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबे में सरकारी वसाइल के गैर कानूनी इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की गर्ज से बिल पास कर लिया। ये बिल सूबाई हुकूमत की तरफ से पेश किया गया। इस बिल की रूह से नवंबर 2008 से अरकान असम्बली की जानिब से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी करार दिया गया है। अपोजिशन ने इस बिल की भरपूर मुखालफत और शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन ने इस बिल को इमरान खान और PTI को नैब की कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश और NRO करार दिया है।
इजलास के दौरान अपोजिशन ने बिल को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। मेंबरान सूबाई असम्बली ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सूबा 1000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है और यहाँ हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए बिल पास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खर्चे कम करने और सादगी के नाम पर आने वाली सरकार ने हेलीकॉप्टर को हथरेडी समझा रखा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआहदे के तहत ज़िला कोहिस्तान को 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली फराहम करने की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम ने वापडा के साथ कोहिस्तान जिरगे के हतमी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब की सदारत की। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कोहिस्तान को सस्ती बिजली की फराहमी पर वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कोहिस्तान जिरगे के अमायदीन और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी का शुक्रिया अदा करते हुए अमीर मुकाम ने कहा कि कोहिस्तान के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हैं और अमन के लिए भी उन्होंने भरपूर कोशिशें की हैं। इंजीनियर अमीर मुकाम ने सिलसिले में भरपूर ताउन करने पर वापडा के तमाम अफसरान का शुक्रिया भी अदा किया। कोहिस्तानी कौम को इस पर दिल्ली मुबारकबाद देता हूँ। ये मुहिब वतन लोग हैं और प्यार करने वाले लोग हैं, वादे निभाने वाले लोग हैं। हमें तवक्को है कि आपकी भी बहैसियत पाकिस्तानी सोचना है कि जो कुछ बन रहा है उसका फ़ायदा इस मुल्क के पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का फ़ायदा हो तो हम सब का होगा। पानी जिस तरह बह रहा है अगर उससे फ़ायदा निकाला जाए, उससे सोना बना दिया जाए तो ये पूरा मुल्क का फ़ायदा है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर कैंट में रेलवे स्टेशन का दौरा किया और नए आने वाली कोचेज़ के मयार का जायजा लिया। उन्होंने कोचेज़ के मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया और उनकी हिफाजत, देखभाल और सफाई का ख्याल रखने की हिदायत की। उन्होंने कोचेज़ पार्किंग एरिया में मुनासिब रोशनी और CCTV कैमरे नस्ब करने की भी हिदायत की। वज़ीर रेलवे ने आइंदा पाकिस्तान में बनने वाली कोचेज़ में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ का भी जायजा लिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का विजन है पाकिस्तान को डिजिटलाइज किया जाए, नौजवानों को डिजिटल स्किल से रुशनास कराने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। इस हवाले से BS और MS क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार अहम है। वफाकी वज़ीर साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि मजदूर तबके को बुनियादी सहूलतें फराहम करना पीपल्स पार्टी का बुनियादी मंशूर है। वर्कर्स कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साजिद तूरी ने कहा कि जिस मुल्क के मजदूर खुशहाल हों उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि वर्कर्स कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा में 504 फ्लैट्स कारकुनों के हवाले करने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 240 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार सैयद मुर्तज़ा महमूद ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि बरामदात को बढ़ाने में इस इदारे का क़याम इंतहाई अहम है, जबकि हमारे पास सलाहियतों के साथ साथ म्यारी और सस्ती लेबर और खाम माल भी सनती पैदावार के लिए मौजूद होता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीहात में सरमायाकाराना दोस्त पॉलिसी के जरिए बरामदात को बढ़ाना है और उसके लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के ऑफिशल्स को हमेशा मुतहरिक रहना है। इस मौके पर उन्होंने सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तान कस्टम्स के बाज़ नारवा रवैये की भी शिकायत की, जिस पर वफाकी वज़ीर ने तमाम मामलात को जल्द अज जल्द इफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से अरकान पार्लिमान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने मुलाकात की। उन्होंने मरियम औरंगज़ेब से मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और उनकी खाला नजमा हमीद के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर इत्तलात से ताज़ियत करने वालों में पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात शहबाज बाबर, पार्लिमानी सेक्रेटरी दाखिला अब्दुर्रहमान कांचू, रुकन कौमी असम्बली हामिद हमीद और वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर बदर शहबाज शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी मोहम्मद अवैस सदीकी से पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर मिथोथा ज़ेली मोडी किज़ा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुआविन खुसूसी ने कहा कि माशरों की तरक्की के लिए तहम्मुल, बर्दाश्त और आबादारी निहायत अहम है। मोहम्मद अवैस सिद्दीकी ने जमहूरियत के लिए आलमी रहनुमा नेल्सन मंडेला की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। हाई कमिश्नर ने कहा कि एक दूसरे की ज़रूरियात की आगाही बाहमी तिजारत बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हम तवानाई के बेहतर निज़ाम की तामीर के ख्वाह हैं, जिससे मयारी और सस्ती बिजली हासिल हो सके। कराची में ऑक्सबे के करीब के इलेक्ट्रिक के 500 केवी ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस ग्रिड की बदौलत नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली हासिल होगी, जिससे कराची और मुल्का इलाकों में सनती तरक्की, माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने कहा कि हम शहर में बिजली की फराहमी और सनती तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। बाद में वज़ीर आला सिंध ने मनसूबे का संग बुनियाद रखा।
सिंध के गवर्नर कामरान खान डिसौरी से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में गुर्बत के खात्मे के इक़दामात, मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुस्तहिक अफराद की मदद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अहम किरदार अदा कर रहा है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के तमाम अजला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं कि नौजवान हमारा कीमती असासा हैं और मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इस्लामाबाद में कॉन्वोकेशन से खिताब की तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क का रोशन मुस्तकबिल नौजवानों की सलाहियतों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इंसान के लिए सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है, ताहम तलबा की कामयाबी में उसातिज़ा और वालिदैन का बड़ा किरदार है। आपकी कामयाबी, दुनिया की और आखिरत की कामयाबी आपके किरदार में मुज़मिर है। आप अगर ईमानदार होंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपने अपनी मदरलैंड पाकिस्तान और पूरी दुनिया की बेहतरी सोचनी है। हमें ये समझना होगा इकट्ठे काम करने में, एक दूसरे को साथ लेकर चलने में ही आफियत और बेहतरी है, और इसी से ही तरक्की की नई राहें खुलती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब ने ग्रेजुएट होने वाले तलबा और तलबात को मुबारकबाद पेश करते हुए इनमें सर्टिफिकेट्स और इनामात तकसीम किए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि कारोबारी तबका मुल्क की माशी तरक्की में अहम सुतून का दर्जा रखता है। हुकूमत कारोबार में आसानियां पैदा करने पर तवज्जो दे रही है। गवर्नर हाउस पेशावर में मुख्तलिफ तिजारती वफूद से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि कारोबारी तबके के लिए मजीद आसानियां पैदा करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। खवातीन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे की मेहनतकश खवातीन की कारोबारी सलाहियतों और हुनर को कौमी बल्कि आलमी सतह पर भी मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमारी सियासत का महवर सिर्फ अवामी खिदमत है। रुकन कौमी असम्बली जावेद वड़ाइच और रुकन पंजाब असम्बली आसिफ मजीद से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफर जारी है और इस वक्त अवामी फलाह के मुतादिद मंसूबों पर काम जारी है। मुलाकात में जिला रहीम यार खान में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरपर्सन पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन मोहतरमा शाहिरा शाहिद ने PTV कराची मरकज का दौरा किया। जनरल मैनेजर कराची मरकज अमजद शाह और जनरल मैनेजर PTV नेशनल मुख्तार लगारी ने सेक्रेटरी इत्तलात को PTV कराची मरकज और PTV नेशनल की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर शाहिरा शाहिद का कहना था कि हुकूमत PTV की तरक्की के साथ साथ इदारे के मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए भी ठोस बुनियादों पर इकदाम कर रही है और मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमीन की तरक्की इसी सिलसिले की एक कड़ी है। PTV कराची मरकज के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने भी शाहिरा शाहिद को अपने शोबों के दरपेश मसाइल से आगाह किया। जनरल मैनेजर कराची मरकज अमजद शाह ने सेक्रेटरी इत्तलात को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश किया। विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात ने सेल्स और मार्केटिंग के शोबे का भी दौरा किया। इससे पहले विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात PTV कराची मरकज पहुंची तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। एशिया एंड पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड्स की ख़ितामी तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पेश करने पर IT प्रोफेशनल्स और कंपनीज को मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स दिए गए। पाकिस्तान एशियाई ममालिक में 20 अवार्ड्स के साथ सर फहरिस्त रहा। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। एपेक्टा अवार्ड्स 2022 की पुरवकार तकरीब एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सजाई गई। पहली बार पाकिस्तान में होने वाले 21वीं एपेक्टा अवार्ड्स की तकरीब में एशिया पैसिफिक के 18 मुल्कों के 200 के करीब शुरका ने अपने मंसूबे पेश किए। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीन उल हक ने कहा कि पाकिस्तान में IT के शोबे में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। हुकूमत मुल्क में IT की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तमाम लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान के फूड्स को एंजॉय किया और पाकिस्तान के IT इंडस्ट्री को उन्होंने ट्रैक डाउन किया। मिनिस्ट्री ऑफ IT पिछले कई महीनों से ये तमाम जो गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, टिकटॉक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, इन तमाम लोगों से मसलसल राब्ते में है। और साथ साथ अच्छी बात ये होगी कि हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नौकरी में भी इजाफा होगा।
इपेक्टा अवार्ड्स की सालाना तकरीब को आईटी इंडस्ट्री में ऑस्कर की हैसियत हासिल है। इस अवार्ड का मकसद आईसीटी के शोबे में इलाकाई ताउन और इश्तराक को फरोग देना है। लोग आएंगे तो उनकी परसेप्शन बेहतर होगी, मुल्क की पीआर बेहतर होगी, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड भी बेहतर होगी, हमारा कल्चर भी ज़्यादा प्रमोट होगा और हम अपने आप को अगली सफ़ों में आगे ला सकेंगे। That's an amazing thing for Pakistan। और उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ सारे तकरीबन 18 इकोनॉमीज़ के लोग आए हुए हैं। यही वो लोग होंगे जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप्स हो रही होंगी। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे हमारी डेफ कम्युनिटी है, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाया था जो कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उनकी होम स्कूलिंग के लिए वो हमने प्रोजेक्ट बनाया और वहाँ पे आके प्रेजेंट किया। रिटेल एंड कॉमर्स में हम गोल्ड जीते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड, और ओवरऑल पाकिस्तान जो 20 अवार्ड जीता है इस अपेक्टा में। अवार्ड तकरीब में तबला, स्टार और रबाब से खूबसूरत धुनें भी पेश की गई, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताउन से होने वाली तकरीब में खित्ते की 26 जीतने वाली टीमों को शील्ड्स और इनामात दिए गए। आईटी के शोबे में जिद्दत से पाकिस्तान में न सिर्फ नई और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ होगी बल्कि सरमायाकारी में भी इजाफा होगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया गया कि हवाबाजी की वजारत का काम महफूज, मौसर और मरबूत फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है। सैयद मुबीन अहमद की सदारत में होने वाले इजलास में बताया गया कि हवाबाजी की वजारत एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, महकमा मौसमियात और हवाबाजी से मुतालिक उमूर की हिकमत अमली और पॉलिसी की निगरानी करती है। इजलास ने वजारत से आइंदा इजलास में यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का दिन मनाया गया, जिसका मकसद सेहत की सहूलियात की बिला तखसीस फराहमी के बारे में शऊर उजागर करना है। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुराद माली मुश्किलात के बगैर दुनिया भर के लोगों को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी है, जो कि एहतियात, इलाज, बहाली और देखभाल पर मुश्तमिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने मुस्तहकम तरक्की के अहदाफ में ये अज़्म कर रखा है कि 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हदफ को मुमकिन बनाया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का दिन मनाने का मकसद सेहत की सहूलियात की बिला तखसीस फराहमी के बारे में शऊर उजागर करना है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इलाज और मुआवजे की सहूलत हर एक का हक है, उन लोगों तक पहुंचता है जो इलाज की सहूलत अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अवाम के लिए सेहत कवरेज की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इकदामात किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को बुरी तरह मुतासर किया, मगर पाकिस्तान में हुकूमती फैसलों और इकदामात की बदौलत आलमी वबा पर काबू पाया गया। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के हवाले से हमने भी अपने सिस्टम को रिवैम्प किया है। बॉर्डर्स पे हम सिक्योरिटी अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो पाकिस्तान से जाए और जो पाकिस्तान में आए तो वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो और उसको दूसरों के लिए भी कोई ख़तरा ना बने। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के लिए हम काफ़ी काम कोशिश कर रहा हूँ। मुल्क को पोलियो से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए भी हुकूमत ने अहम इकदामात किए। सेहत और तंदुरुस्ती जैसे अहम शोबे के लिए हस्पतालों और तिब से वाबस्ता अफराद को भी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन और ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए दोनों मुल्कों की लोक मौसीकी और सकाफत के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। PNCA इस्लामाबाद में पाक चीन कल्चरल एक्सचेंज डिपार्टमेंट्स के ज़ेरे तमाम होने वाले सकाफती प्रोग्राम में चीन के फनकारों ने वर्चुअल परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। तकरीब में पाकिस्तानी फनकारों ने पाकिस्तान की रवायती मौसीकी और परफॉर्मेंसेस पेश करके समा बांध दिया।
PNCA में पाकिस्तानी रवायती दस्तकारियों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें पाकिस्तानी दस्तकारों की जानिब से बनाई गई अशिया रखी गई थीं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कुछ सकाफत के हवाले से। स्पेशल बलोची सकाफत, बलोची रिवायती छड़ी बलोच सकाफत का अहम हिस्सा है। बलोची छड़ी बनती कैसे है बताएंगे हमें फाइक अली बुक्टी अपनी इस रिपोर्ट में। बेराबुक्ती में बलोची छड़ी बनाने का फन हजारों साल पुरानी है। खूबसूरत डिजाइन की छड़ी बनाना मेहनत तलब अमल, मगर इसकी उजरत बहुत कम। बलोची छड़ी बनाने के लिए जंगलों से बेहतरीन लकड़ी की तलाश की जाती है। कऊ का लकड़ी है, पहाड़ियों से हम जाके ढूंढ के काट के लेते हूँ। बिल्कुल उसको जो है हम बना के बराबर करके नमूना से बना के पाकिस्तान से दे रहे। करम अली बुक्टी और उनके साथियों का ताल्लुक बुक्टी कबाइल से है। उनके आबा व अजदाद भी दस्तकारी से खूबसूरत डिजाइन की बलोची छड़ी बनाकर बेचा करते थे। 300 रुपए का हम लेके आते हैं, कश्मीर से कोटिया से मिलता है। फिर इसके ऊपर निशान लगाते हैं, मोर लगा के बेचते हैं, 1500 का बेचते हैं। बलोची छड़ी बनाने का फन बुक्टी कौम की पहचान है, जिसे जिंदा रखने के लिए हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र हाई रिस्क इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामात से मुतालिक रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वक़ार अहमद। बलूचिस्तान में मुतवक्की बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी और हाई रिस्क एरियाज में हैवी मशीनरीज भी पहुंचा दी गई है। 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हाई रिस्क एरिया हैं। स्नोफॉल के लिए स्नो इमरजेंसीज हमने नाफिज कर दी है। कच्ची है, सिब्बी है, गवादर है, हरनाई, शेरानी और जोब का एरिया, वो डिस्ट्रिक्ट भी जहाँ पे, क्योंकि इनमें सीजनली हमारी रेनफॉल्स बारिशें भी होती हैं, तो उनको भी हमने अपने जो प्रायोरिटीज एरियाज हैं उनमें रख लिया है। पीडीएम ने मेट ऑफिस अलर्ट्स पर 12,000 कंबल, 7,000 सिलाई शॉल्स, 42,000 खजूर के पैकेट्स और दूसरी चीजें हाई रिस्क इलाकों में पहुंचा दी हैं। बलूचिस्तान मजीद किसी कैटास्ट्रोफी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।